جاتی ہے. یعنی جب غوث اعظم نے نماز پڑھی ان کی دعا میں ہم اور آپ شامل تھے. خواجہ پاک نے جب نماز پڑھی خواجہ پاک کی دعا میں ہم اور آپ جیسے گنہگار انسان شامل تھے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نماز پڑھی اعلیٰ حضرت کی نماز میں ہم اور آپ شامل تھے. اور ہمارے مخدوم پاک نے جب نماز پڑھی ان اولیاء کی دعا میں ہم اور آپ شامل تھے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم جیسے گنہگار کی دعا میں وہ بزرگ شامل ہو جاتے ہیں. یاد رکھو جو پچھلوں کی دعا سے اگلوں کی معافی ہو جاتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کے پیغمبر ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل وسلم على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. لائق صد احترام نمونہ اسلاف مخیر اہل سنت حضرت علامہ حافظ قاری مفتی محمد ہرمز عالم صاحب دامت معالیہم، حضرت علامہ مفتی محمد ریاض احمد امجدی صاحب زیدہ مجدو، حافظ حضرت محمد شاہنواز عالم صاحب زیدہ حبو، دیگر معزز علماء اکرام اور معزز سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے تھوڑی دیر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی. خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس طرح کی محافل اور مجالس میں شریک ہوا کرتے ہیں. اس طرح کی محفل میں ہر کوئی شریک نہیں ہوتا. یہاں پر وہی آ سکتا ہے جس بندے کو رب رسول قبول فرما لیں، کیونکہ یہاں رب رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں رب رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ اپنا ذکر انہی بندوں کو سنواتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو آج ایصال ثواب کی محفل میں اور آپ حاضر ہیں. جن کے نام سے ایصال ثواب ہے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. اب آج کے سماج اور آپ کی سوسائٹی میں آپ پوچھیں گے کسی سے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے ہمارے گاؤں کا ایک زمیندار ہے وہ بڑا اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے ہمارے گاؤں میں ایک سرمایہ دار ہے وہ بڑا اچھا انسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر صاحب ہے بڑے اچھے انسان ہیں، انجینئر صاحب ہیں بڑے اچھے انسان ہیں، ماسٹر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں. مگر آؤ
अपने पैगंबर से पूछो कि हुजूर आप बताएं हमारे नारायण टोला में कौन सबसे अच्छा इंसान है। आओ हुजूर से पूछते हैं। जब हमने हुजूर से पूछा तो आका फरमाया, सुनो, तुम्हारे गांव में सबसे अच्छा इंसान, सबसे भला और भोला इंसान, सबसे प्यारा और पसंदीदा इंसान वो है जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो हजरात, जो इंसान दूसरों को ज्यादा फायदा पहुंचाता है वो बड़ा अच्छा इंसान होता है, या आपके पैगंबर की नजर में सबसे अच्छा इंसान। अब इसी का एक मफहूम मुखालिफ है, इसी का अपोजिट, इसी का एक दूसरा उन्वान। अच्छा इंसान के बारे में आपने जान लिया कि जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए वो अच्छा है। अब यहीं से आपको मालूम हो गया कि जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो सबसे बुरा इंसान है, वो सबसे बेकार इंसान है, वो सबसे ज्यादा खराब इंसान है। यानी जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए वो अच्छा इंसान है, और जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, परेशान करता है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है। हजरात, अब फायदा पहुंचाने वाला अच्छा इंसान, दूसरों की बुराई करने वाला, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला बुरा इंसान होता है। अब सुनो, हदीस पाक आपको सुनाने लगा हूं। हमारा और आपका अकीदा यह है कि जिस तरह से जिंदों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, जिस तरह से जमीन पर रहने वालों को फायदा पहुंचाया जाता है, उसी तरह से जमीन में रहने वालों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। जो लोग जमीन पर हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है, तो जो लोग जमीन में हैं उनको भी फायदा पहुंचाया जा सकता है। अब मेरे हुजूर ने फरमाया, सुनो हदीस पाक, जोर से कहो सुभान अल्लाह तो सुना देते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अल्लामा स्यूती, इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुफस्सिरीन, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक को कोट फरमाते हैं, लिखते हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया, उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, मेरी उम्मत रहम की हुई उम्मत है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत ऐसी उम्मत है जिस पर अल्लाह ने रहम फरमा दिया है, जिस पर अल्लाह ने करम फरमा दिया है। अब ये बुजुर्ग कौन है? अल्लामा स्यूती। सुनो, अल्लामा स्यूती वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने जागते हुए आपके और मेरे पैगंबर को 75 मर्तबा दीदार किया है। एक बार दो बार नहीं, 10 बार 20 बार नहीं, 30 बार 40 बार नहीं, 75 मर्तबा, 75 मर्तबा इमाम स्यूती ने मेरे आका को जागते हुए देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े इमाम, इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुफस्सिरीन, 75 मर्तबा हुजूर को जागते हुए देखने वाले, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मेरे हुजूर के हदीस से पाक है, हुजूर फरमाते हैं, उम्मतुन उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, मेरी उम्मत रहम की हुई उम्मत है, मेरी उम्मत ऐसी उम्मत है जिस पर अल्लाह ने रहम फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबा इकराम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये रहम कर दी गई उम्मत है, इस पर रहम कर दिया गया है, इस पर करम हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमाए वो किस तरह से करम हुआ? मेरे हुजूर फरमाते हैं, सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया, तदखुलू कुबूरहा बेजुनूबिहा व तखरुजू मिन कुबूरिहा वला जुनूब अलैहा। यानी मेरी उम्मत की शान ये है, जब ये कब्र में जाती है तो गुनाहों के साथ कब्र में जाती है, मगर ये कब्र से जब उठेगी तो इस हालत में उठेगी कि इसके गुनाह माफ हो चुके होंगे। कब्र में जाने से पहले गुनाहों के साथ कब्र में गई थी, मगर ये कब्र से जब ये उम्मत उठेगी तो इस हालत में उठेगी कि इसके पास गुनाहों का असर भी नहीं रहेगा, गुनाह माफ हो चुके होंगे। अब सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिस पर करम कर दिया गया है, ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिस पर रहम कर दिया गया है,
खुदा की रहम करदा उम्मत है। आका एक बात तो बताएं, ये कब्र में उम्मत गई, इंसान कब्र में गया, कब्र में जाने के बाद इसने नमाज तो नहीं पढ़ी, इसने ज़कात तो नहीं दी, इसने हज तो नहीं किया, इसने सदका व खैरात तो नहीं किया, आका इसके गुनाह कैसे माफ हो गए? आका फरमाए इसके गुनाह कैसे माफ हो गए? अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो मुसलमानों, मेरे हुजूर फरमाते हैं सुनो, ये उम्मत कब्र में गई तो गुनाहों के साथ गई थी, जब कब्र से उठेगी हश्र में जाएगी तो गुनाह इसके माफ हो चुके होंगे। अब सहाबा अर्ज करते हैं आका वो कैसे? रब फरमाते हैं सुनो, जब ये इंसान कब्र में आया था, अपने पीछे अपने खानदान को छोड़ आया था, कोई अपना भाई छोड़ आया था, कोई अपनी बहन को छोड़ आया था। अगर माँ बाप रुखसत हुए तो अपने बच्चों को छोड़कर रुखसत आए थे, अगर भाई गया तो भाई को छोड़कर आया था, अगर बहन गई तो भाई को छोड़कर आई थी, अगर माँ बाप गए बच्चों को छोड़कर आए थे, अगर बच्चा गया माँ बाप को छोड़कर आया था। यानी कोई आने वाला आया अपने पीछे खानदान को छोड़ आ रहा। सुनो सहाबा सुनो, अपने पीछे खानदान को जब छोड़ आए, ये खानदान जब जब नमाज पढ़ेगा, इनकी औलाद, इनके बच्चे, इनके भाई बहन, इनके खैशो कारिब जब जब नमाज पढ़ेंगे, रब में नमाज में अत्तहियात के बाद, दुआए मासूरा के बाद ये पढ़ेंगे रब्बिग़फिरली वले वाले दैया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे, और जो मुझसे पहले रुखसत हो गए उन्हें माफ कर दे। मेरे हुजूर फरमाते सुनो, पिछलों की दुआ से अगलों की माफी हो जाती है, पिछलों की दुआ से अगलों की माफी हो जाती है। यानी हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में ऑटोमेटिक दुआ का सिलसिला अल्लाह ने रखा। हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ से अगलों की माफी हो जाती है। यानी जब गौसे आजम ने नमाज पढ़ी, उनकी दुआ में हम और आप शामिल थे। ख्वाजा पाक ने जब नमाज पढ़ी, ख्वाजा पाक की दुआ में हम और आप जैसे गुनहगार इंसान शामिल थे। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने नमाज पढ़ी, आला हज़रत के नमाज में हम और आप शामिल थे। और हमारे मखदूम पाक ने जब नमाज पढ़ी, उन औलिया की दुआ में हम और आप शामिल थे। और हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम जैसे गुनहगार की दुआ में वो बुजुर्ग शामिल हो जाते हैं। याद रखो, तो पिछलों की दुआ से अगलों की माफी हो जाती है। मैं नहीं कहता, ये आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम जब दुआ करें नमाज में, हाथ उठाकर दुआ करें या ना करें, साले सवाब की महफिल इस तरह सजाए ना सजाए, खाना बने या ना बने, सुनो जब जब ये नमाज बंदा पढ़ेगा तब तब इसके माँ बाप की माफी होती रहेगी, इसके खानदान की माफी होती रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पिछलों की दुआ से अगलों की माफी हो जाती है। अब बताइए, जो जमीन पर हैं, इनकी दुआ से जो जमीन में हैं उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, इंसान सबसे अच्छा वही है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो हजरात, हमारी दुआ से जमीन में रहने वालों को फायदा हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये हदीस पाक से फकीर ने साबित कर दिया। अब सुनो, हमारी दुआ से उनको तो फायदा हो जाता है। हम जो यहाँ सवाब कमाते हैं, हम जो यहाँ नेकियां कमाते हैं, हम जो यहाँ सवाब इकट्ठा करते हैं, कलेमा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सब सवाब मरहूम को कब्र में मिल जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब हमने नेकियां की, सवाब किया, उनको तो मिल गया, मगर हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? ये भी हदीस पाक सुनो, सो कहो सुभान अल्लाह। तो सुना